Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we have completed the point that is Mill's classification on liberty. We completed this point. No, sorry, we have completed this the representative government. मिल क्या करता है, उसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है क्योंकि वो बोलता है इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट पूरी तरह से यूटिलाइज होता है। गुड गवर्नेंस कब बोलते हैं, जब उसके अंदर दो क्वालिटीज़ रहती है, एक तो क्वालिटी रहनी चाहिए एंड स्किल ऑफ द सिटीजन टू बेस्ट सर्व द इंटरेस्ट एंड इट मस्ट अप्रूव द मॉरल इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिव क्वालिटीज ऑफ दिस सिटीजन। A despotic government may be able to fulfill the first purpose but will fail in the second one. See, Mill in his book Representative Government suggested reform for a good government. He himself was a member of House of Commons in England. He observed some shortcoming in the nature and working of democracy in England. He was a lover of democracy who classified basic issues and pointed out ways of building up institutions. अब उसके व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी क्या थे, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सी ही बिलीव दैट डेमोक्रेसी मेक्स मैन हैप्पियर एंड बेटर। सी वो क्या बोलता था, ही बिलीव दैट डेमोक्रेसी खुश रखने के लिए, बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन ही सेड in this system every citizen has a voice in the expression of will of the state. Then democracy is not suitable to all societies. Democracy is suitable when all citizens reign in a way of democracy. Democracy should be introduced in a society and all should get the right to vote. See, democracy क्या है, ये हर किसी को सूट करता है बट उस हिसाब से आपने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए। देन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, सी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है कि खाली पॉलिटिकल काम करना यही है क्या, नहीं, ये भी देखना है कि ह्यूमन बीइंग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, लाइक सब कुछ अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, लोगों को पॉलिटिकल एडुकेशन के बारे में जागरूक करना है। अ गवर्नमेंट मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज सो दैट इट कैन गिव द बेस्ट सर्विस टू इट्स पीपल। Then the fourth point is democracy serves from two dangers. Mill regarded the representative form of government is the best form of government. क्यों? It suffers from two dangers: general ignorance and incapacity in the controlling body in the state and in the parliament. The danger of democratic machinery being in the controlling hands of a section of population whose interests are not identical with the general welfare of the whole community. Reforms in the representative government. Mill suggested following reforms in the representative government. Voting rights. Mill recommended that voting rights should be given to only those who possess a certain amount of intellectual capacity. See, जो होशियार है, जिनको नॉलेज है, सिर्फ उन्हीं को आप परमिशन दो वोट करने की, राइट। जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वगैरह है विल नॉट अपोज, उसके लिए वो अपोज नहीं कर रहा है, मतलब जो अबव 18 ईयर्स है वो वोट कर सकते हैं, इसके लिए वो अपोज नहीं कर रहा है, बट उस हिसाब से आप प्रॉपर उनको एडुकेशन दो। देन प्यूरल वोट. Mill recommended a system of plural voting to highly educated citizen, as such professor, lawyer, right. अब जितना ज़्यादा एडुकेटेड रहोगे आप उतने ज़्यादा वोट्स दोगे, ये मिल का व्यू पॉइंट था। लाइक Mill was critical of the electoral system which established uniformity instead of recognizing the qualities of the individual. He stressed on plural voting because he had distrust about the lower class. Then advocated the leadership of the elite class. See, Mill's democracy had an elite foundation, मतलब वो ये अपर क्लास उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग होशियार रहते हैं, इनको सब कुछ अच्छे से पता चलता है, सब अच्छे से पता चलता है, दे हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड ऑल। अगर आप पुअर लोगों के हाथ में दे दोगे तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं रहते हैं तो क्या है, गलत वोट डाल देते हैं। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन,
मिल क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में देयर वाज एन इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन. देन ओपन बैलेट. मिल हैड सजेस्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओपन बैलेट सिस्टम इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट. ओपन बैलेट में क्या है, जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं है उनको आप प्रॉपर एक इंसान रख दोगे तो प्रॉपर गाइड करेगा और वो वोट अच्छे से कर पाएगा. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो उसका वोट वेस्ट नहीं जाएगा. और सीक्रेट में क्या होता है, सेल्फिश और प्राइवेट मोटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, emancipation of women and women franchises. Mill paid attention to the question of women's right in the 19th century. See, मिल ने क्या किया है, मिल पेड अटेंशन, मिल पेड अटेंशन टू द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट इन द 19th century. He had a strong appeal to end discrimination on the basis of sex. See, मिल क्या था, मिल was against the discrimination on the basis of sex. He was the first to raise the issue of women's emancipation in the British Parliament. See, ये सबसे पहला था मिल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के बारे में, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए वॉइस रेज किया था. He said lack of issue of women's emancipation. He said lack of opportunity prevented them from making their contributions to the society. उसने क्या बोला, अपन ने वुमेन्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी है. इफ़ वी वुड हैव गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन देन दे वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी ऑल्सो इन अ प्रॉपर वे. He craved that equality with men in many fields will enable women to make valuable contribution to the society. He craved that. See, अगर इक्वालिटी दोगे मेन एंड वुमेन को तो क्या है, वुमेन भी उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करेगी टू द सोसाइटी. इन द हाउस ऑफ कॉमन ही मेड एन अपील टू एक्सटेंड द राइट टू वोट टू द वुमेन. सी, इन द हाउस ऑफ कॉमन उसने अपील किया था कि वुमेन को भी राइट टू वोट, वुमेन शुड गेट द राइट टू वोट, ये उसने अपील किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे अपन इंडिया में लोकसभा बोलते हैं. ही वॉज इन द फोरफ्रंट इन द वुमेन्स फ्रेंचाइजी मूवमेंट विच वॉज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century. See, he was in the forefront in the women's franchising movement which was getting organized in the later half of the 19th century. Mill says women are naturally equal with men and observable difference in their attributes are due to education and circumstances. मिल क्या बोलता है, वुमेन भी मेन के साथ काम करते हुए आगे बढ़ सकती है, राइट. उनमें भी उतनी ही काबिलियत होती है जितनी मेन में होती है. अगर डिफरेंस अपन करेंगे तो वो ये अपन डिफरेंस करते हैं इसलिए एजुकेशन में, करिकुलम में वो पीछे रह गई है. अगर अपन डिफ्रेंशिएट करना छोड़ दें तो इवन वुमेन कैन वर्क इन अ बेटर वे. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन. तो क्या ओपिनियन का था, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन. सेकेंडली देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज्ड. सेकेंड क्या था, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना था, राइट. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाना था. They should increase their political participation. He actively supported the women's franchising movement both within and outside the parliament. See, वुमेन फ्रेंचाइजी मूवमेंट उसने हर जगह से अच्छे से सपोर्ट किया, राइट फ्रॉम इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ सोवियत अथॉरिटी. मिल सेड एवरी सिटीजन शुड हैव अ वॉइस इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अल्टीमेटली सोवियतनिटी, बट ही इज occasionally called on to take an actual part of the government by the personal discharge of some public function. See, people's participation in administration and exercise of Soviet authority. मिल सकते हुआ हर सिटीज़न ने अपना वॉइस रेज करना चाहिए, हर सिटीज़न ने गवर्नमेंट के हर एक्टिविटी में पार्ट रहना चाहिए
ताकि सब कुछ एवरीथिंग गोज ऑन इन अ स्मूथ वे, इन अ बेटर वे, एंड एवरीथिंग फंक्शंस इन अ प्रॉपर वे. मिल डिड नॉट वांट अ रेडिकल चेंज इन द इकोनॉमिक सिस्टम. मिल को क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए था. फॉर हिम सोशलिज्म वॉज नॉट द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास. फॉर हिम उसके लिए क्या था, सोशलिज्म क्या है, ये राइट आंसर नहीं था उसके प्रॉब्लम के, लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास. ही वॉज फर्मली बिलीवर इन कैपिटलिज्म. सी मिल क्या कर रहा था, मिल फर्मली बिलीव्ड इन कैपिटलिज्म. ये अपन ने देखा ना, वो बिलीव करता था कैपिटलिज्म में. ही हैड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. सी अब ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसने क्या किया, उसने उसके उस पर भी अप्रोच किया. लाइक ही हैड अ प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, लाइक एक अच्छा इंसान बन के उसने इस प्रॉब्लम पे भी सोचा. ही वॉज इन फेवर ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वलिटेरियन रूल, बट ऑल दिस थिंग्स ही वांटेड within the liberal democratic and capitalist framework. He was in favor of equality and equalitarian rule, but all these things he wanted within the liberal democratic and capitalist framework. He advocated in the leadership of the bourgeois class. वो लीडरशिप किसके हाथ में जाना चाहिए बोलता है, लीडरशिप अपर क्लास के लोगों के हाथ में ही जाना चाहिए. He refused to give Soviet power to the representative assembly. See, he refused to give Soviet power to the representative assembly. He favors a smaller expert body, a commission of legislative to make laws. See, he favors a smaller expert body. वो एक expert body चाहता है जो law वगैरह बनाए, अच्छे से काम करे. He had no regard for एमिएचर पॉलिटिकल क्रिएचर, लाइक ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, उसको उसके ऊपर उसको ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए था. मिल वॉज अ ट्रू डेमोक्रेटिक हु पॉइंटेड आउट बेसिक इशूज एंड वेज ऑफ बिल्डिंग अप डेमोक्रेसी. मिल वॉज अ ट्रू डेमोक्रेट हु पॉइंटेड आउट बेसिक इशू. वो ट्रू डेमोक्रेटिक था, जो उसके अंदर के इशू उसने बताए और उसने बोला भी, लाइक डेमोक्रेसी अपना कैसा होना चाहिए. और उसने ही फेवर्ड इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी. और उसने किसको फेवर किया, ही फेवर्ड द इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी. ही ट्रस्टेड डेमोक्रेसी ओनली इन द हैंड्स ऑफ दोज हु सपोज्ड इंटेलिजेंट एजुकेशन एंड हायर क्लास. वो डेमोक्रेसी किसके हाथ में देना बोलता था, जो हायर क्लास के लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो हायर क्लास लोग हैं, उन्हीं को आप उनके हाथ में डेमोक्रेसी दो. क्यों, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छे बुरे की पहचान है, वो सब काम अच्छे से कर पाएंगे. सो दे कैन फॉर्म अ गुड गवर्नमेंट एंड दे कैन रूल इन अ बेटर वे. ही थॉट दैट डेमोक्रेसी लिबर्टी वॉज नॉट सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल. उसने बोला ये डेमोक्रेसी लिबर्टी क्या है, ये हर किसी के, हर लोगों को नहीं सूट करती. ही गेव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी देन क्वांटिटी. सी ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम. सी उसने इम्पोर्टेंस किसको दिया, ही गेव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी. क्वालिटी मतलब 4 लोग रहने दो, बट चारों के 4 होशियार रहने दो. लाइक 10 जन की जगह में आप 10 जन ही भरोगे, बट एक भी ढंग का नहीं, उसको कुछ इम्पोर्टेंस है क्या, नहीं. बट आप 10 की जगह 5 ही लोग ले रहे हो, बट 5 के 5 एकदम होशियार लोग ले रहे हो, तो इसको इम्पोर्टेंस है ना. सो he gave importance to quality than quantity of people in democratic system. He was a great feminist, great champion of individual and liberty of the individual. See, वो एक champion था individualism का and liberty of an individual का. Then moving towards the next point, views on utilitarianism. The canonical statement of Mill's utilitarianism role can be found in his book. अब ये जो स्टेटमेंट वगैरह सारे हैं मिल्स के, ये आपको उसके बुक में देखने को मिलते हैं. Although this philosophy has a long tradition, Mill account is primarily influenced by Jeremy Bentham and Mill's father James Mill.
ऑल्दो ये जो फिलोसॉफी है वो बहुत पहले से है, लॉन्ग ट्रेडिशन है, बट मिल ने ये सारे किससे सीखा? ही गॉट इन्फ्लुएंस बाय जेरेमी बेनेथम एंड मिल्स फादर जेम्स मिल। जेम्स मिल भी एक राइटर थे, उसके फादर भी, और जेमी बेथलम ये भी एक अच्छा फिलोसोफर था, राइटर था, तो उन दोनों से इन्फ्लुएंस हुआ था वो। जॉन स्टुअर्ट मिल believed in the philosophy of utilitarianism, which he would describe as the principle that holds that action are right in the proportion as they turn to promote happiness, wrong as they turn to produce the reverse of happiness. See, अभी जॉन स्टुअर्ट मिल बिलीव इन द फिलोसॉफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म विच यू डिस्क्राइब एज अ प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है? आप एक्शन वैसा करो जिससे आपको सही लगे, लाइक सही प्रपोर्शन में आपको एक्शन करो, लाइक वॉट एवर यू डू एक्शन, डू इट इन अ राइट वे, डू इट इन अ प्रॉपर वे, राइट, जिसका असर भी सही हो। अगर आप रॉन्ग एक्शन करोगे तो क्या है, आपकी हैप्पीनेस, आपको कोई खुशियाँ नहीं मिलेगी। आप ऐसा काम करो जिसमें आपको खुशियाँ मिले, जिससे आप खुश रहो। ऐसा काम करो जिसमें आप दिल से खुश ना रहो, बस किसी को बदला लेने की करते हो, तो ये गलत है। बाय हैप्पीनेस ही मीन्स इंटेंडेड प्लेजर एंड द एब्सेंस ऑफ पेन। अभी हैप्पीनेस यहाँ पे क्या बोल रहा है? दिल से करो, जहाँ पे करने के बाद आपको ज़रा भी दुख ना हो और आप अंदर के मन से दिल से बहुत खुश हो। बाय अनहैप्पीनेस पेन एंड द प्राइवेट ऑफ प्लेजर। और अनहैप्पीनेस क्या है? ये दुख है, और ये क्या है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्लेजर है। It is clear that we do not all value virtues as a path to happiness and that we sometimes only value them for selfish reason. अब इसे एक चीज़ क्लियर होती है, इसे एक चीज़ क्लियर क्या होती है? भी अपन क्या बोलते हैं? अपन खुशी किसको बोलते हैं? एक चीज़ क्या समझ में आती है कि बाबा अपन जो सही काम करो तो सही दिशा मिलेगी, राइट। बिना किसी गलत इंटेंशन से आप भी सही काम करो ना, तो भी वो सही काम नहीं कहलाएगा। इससे क्या है, आपको भी तकलीफ होगी। However, Mill asserts that upon reflection, even when we value virtues for selfish reason, we are in fact cherishing them as a part of our happiness. See, however, Mill क्या बोलता है? भले आपके एक्शन से वो रिफ्लेक्ट ना हो, बट अगर आप सेल्फिश रीज़न के साथ कुछ काम करोगे तब भी आपको लगता है, आपको तब खुशियाँ मिलती है, बट वो खुशी दिल से नहीं रहती, वो अंदर की खुशी नहीं रहती। बेनेथम फेमस फॉर्मुलेशन ऑफ यूटिलिटेरिज्म इज नोन एज अ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। सी, बेनेट ने क्या किया? उसने यूटिलिटेरिज्म को क्या बोला है? इट इज़ द greatest happiness principle. It holds that one must always act so as to produce the greatest aggregate happiness among all sentiments being within reason. See, it holds that, अभी it holds that one must always act, अपन ने ऐसा काम करना चाहिए, उस हिसाब से बिहेव करना चाहिए जिससे आप खुश हो, राइट, दिल से खुश हो, भले ही रीज़न छोटा बड़ा कुछ भी हो, बट यू शुड बी हैप्पी। इन अ सिमिलर वेन, मिल्स मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूटिलिटी इज दैट ऑफ मॉरल एजेंट। व्हेन गिवन द चॉइस बिटवीन टू और मोर एक्शन, ought to choose the action that contribute most to maximize the total happiness in the world. See, in similar way, मिल्स मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग। अब बेस्ट यूटिलिटी कब होती है? जब अपन मॉरल एजेंट रहते हैं अपने पास, जब अपने को चॉइस मिलती है, बिटवीन, लाइक मैं आपको दो चॉइस दूँ और बहुत ज़्यादा चॉइस दूँ, हाँ, दो चॉइस देने का और बहुत ज़्यादा चॉइस देने का। अभी दो चॉइस आपके पूरे फेवर में है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चॉइस है बट बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। तो आप ऐसा चूज़ करो जिससे आपको खुशी मिले, भले ही दो हो और आपको उसका दुख ना हो और दूसरों को भी उसका दुख ना हो, इवन द अदर शुड बी हैप्पी। गिवन दैट डिटरमाइनिंग द एक्शन that produces the most utility is not always so clear cut. See, given
गिवन दैट डिटरमाइनिंग द एक्शन, अभी वो एक्शन करना जिससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिले इज़ नॉट ऑलवेज सो क्लियर कट। इतना सिंपल सा नहीं बोल रहे, जितना आपको सिंपल सुनने में लग रहा है एक्चुअली उतना सिंपल नहीं है वो। Mill suggests that utilitarianism moral agent when attempting to rank the utility of different action should refer to the general experiences। अब मिल क्या बोलता है, जब आप यूटिलिटेरियन मॉरल एजेंट देखते हो तब आप क्या देखते हो, अलग अलग एक्शन देखते हो, तो फिर जनरल एक्सपीरियंसेस भी देखो ऑफ पर्सन, उन लोगों के जनरल एक्सपीरियंस देखो, उन लोगों के एक्सपीरियंस देख के आप डिसीजन लो। दैट इज if people generally experience more happiness following action X then they do action Y, the utilitarian should conclude that action X produces more utility than Y so as to be preferred। See, अभी जनरली X को लेने से ज़्यादा खुशी होती है बट लोग Y एक्शन करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्शन X फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा लोग खुश होते हैं। और यूटिलिटरिज्म इज अ कॉन्सिक्वेंस इथिकल थ्योरी, राइट। यूटिलिज्म क्या है? ये एक इथिकल थ्योरी है, मीनिंग दैट इट होल्ड्स दैट एक्शंस आर जस्टिफाइड इन सो फार एज दे प्रोड्यूस अ डिजायरेबल आउटकम। सी, अब उसका मीनिंग क्या है? अभी ऐसा एक्शन है जिसका आउटकम जैसा आपको चाहिए था वैसा मिलता है। द overreaching goal of the utilitarianism, the ideal consequences, is to achieve the greatest good for the greatest number as the end result of human action। See, the overreaching goal of utilitarianism, the ideal consequence is to achieve the greatest good for the greatest number as the end result of human action। In utilitarianism, Mill states that happiness is the sole end of human action। मिल क्या बोलता है? हैप्पीनेस, खुश रहना चाहिए। आप जो भी काम करो, जो भी एक्शन लो, उसमें आप खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मिल गई यानी आपका एक्शन सही है। दिस स्टेटमेंट अरोज सम कंट्रोवर्सीज विच इज व्हाई मिल टुक इट अ स्टेप फर्दर। सी, अब जब मिल ने ये स्टेटमेंट किया कि हैप्पीनेस इज द सोल एंड ऑफ ह्यूमन एक्शन, तो उधर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई। तो मिल ने क्या किया, उधर ही एक स्टेप आगे लिया, एक्सप्लेनिंग how the very nature of human wanting happiness and how take it to be reasonable under free consideration। See, Mill took it a step further। उसने एक्सप्लेन किया किस तरह से ह्यूमन नेचर रहता है, किस तरह से उसको खुशियाँ चाहिए रहती है, और वो उस हिसाब से रिजनेबली ही टेक्स अ फ्री कंसिडरेशन डिमांड दैट हैप्पीनेस इज इंडीड डिज़ायरेबल। और ये क्या है? हैप्पीनेस अनडिज़ायरेबल रहती है, मतलब डिज़ायर मतलब एक खुशी मिलेगी तुरंत दूसरी खुशी। इन अदर वर्ड्स, फ्री विल लीड्स एवरीवन टू मेक एक्शंस inclined on their own happiness। In other words, free will lead everyone to make action inclined on their own happiness unless reason that it would improve the happiness of other, in which case the greatest utility is still being achieved। See, in other words क्या है? फ्री विल लीड एवरीवन, अगर फ्री रहेंगे तो हर कोई प्रॉपर एक्शन लेगा जिससे वो खुश रहेगा, और लोगों के पास क्या है? एक रीज़न रहेगी खुश रहने की। टू दैट एक्सटेंट द यूटिलिटरिज्म दैट मिल इज डिस्क्राइबिंग इज अ डिफॉल्ट लाइफस्टाइल दैट ही बिलीव्ड इज व्हाट पीपल हु हैव नॉट स्टडीड अ स्पेसिफिक अपोजिंग फील्ड ऑफ एथिक्स would naturally and subconsciously use when faced with decision। अभी टू दैट एक्सटेंट क्या है? द यूटिलिटरिज्म दैट मिल इज डिस्क्राइबिंग ये एक डिफ़ॉल्ट लाइफस्टाइल है, हाँ, दैट इट बिलीव, जो पीपल नॉट स्टडीड अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एथिक्स, जिन्होंने एथिक्स का एक स्पेसिफिक फील्ड वगैरह नहीं पढ़ा है, वुड नेचुरली एंड सबकॉन्शियसली यूज व्हेन फेस्ड विद डिसीजन। देन utilitarianism is thought of by some of its activity to be a more developed and overreaching ethical theory of Immanuel Kant belief in goodwill and not just some default cognition process of human। See, utilitarianism क्या है? Is a thought of by some of its activities to be a more developed and overreaching ethical theory of Immanuel Kant belief in goodwill and not just some default cognitive process of human, where Kant would argue that
reason can only be used properly by goodwill, Mill would say that the only way to universally create fair law and system would be to step back to the consequences. Where Kant would, अभी Kant argue कर रहा है कि reason can only be used properly by goodwill. Reason क्या है? आप properly by goodwill use करो. Mill क्या बोलता है? Mill would say that only way to universal create fair law and system would be step back to the consequences. तो क्या बोलता है? अगर आपको fair law वगैरह करना है तो आप consequences देखो और consequences देख के step back कर लो गलत consequences को. Whereby Kant ethical theory become based around the ultimate good utility. But कांत की जो इथिकल थ्योरी है वो उस वक्त की बेस्ट यूटिलिटी थ्योरी मानी गई थी. बाय दिस लॉजिक द ओनली वैलिड वे टू डिस्क्राइब व्हाट प्रॉपर रीजन इज would be to view the consequences of any action and weigh the good and the bad, even if on the surface the ethical reason seems to be indicating a different train of thought. अगर इस लॉजिक से जाए तो एक वैलिड वे जो आप व्हाट प्रॉपर रीज़न जो आप रिव्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्शन एंड वेट जिससे आप वेट कर सको कि वह क्या सही है क्या गलत है, भले कोई भी सरफेस रहने दे, ये सबका थॉट अलग अलग रहेगा इस पर. लाइक अपन किसी का भी वो थॉट कंबाइन नहीं कर सकते, सही गलत हर एक के व्यू पॉइंट से अलग अलग रहता है. नाउ we'll wind up our lecture here. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you. In next lecture, we'll start with the higher and lower pleasure. Thank you.